السلام علیکم، میں ہوں سید عقیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک۔ چلتے ہیں پربھنی ضلع کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے۔ جمیعت الانوار چیریٹیبل ٹرسٹ گولیگاؤں اونڈا ضلع ہنگولی کی جانب سے یہاں پر جس طرح سے مولانا علیم الدین صاحب انہوں نے قوم اور ملت کی خدمت کرنا شروع کی، اور انہوں نے آج 16 جون 2026 کو ہنگولی ضلع میں ضرورت مند خواتین کو، جو عالمہ حضرات ہے خواتین میں، ان لوگوں 10 سلائی مشین واٹپ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں پربھنی شہر کے شاہی مسجد کے ایریے میں پاڈیلا فنکشن ہال، یہاں پر بھی اسی طرح سے 10 عالمہ حضرات کو بلایا گیا، اور 10 عالمہ حضرات کو بلا کر ان لوگوں کو سلائی مشین تقسیم کیے گئے۔ حقیقت میں مولانا علیم الدین صاحب جمیعت الانوار چیریٹیبل ٹرسٹ گولیگاؤں اونڈا ضلع ہنگولی، ان کی جانب سے جس طرح سے یہ پہل کی گئی ہے کہ ایک ادنا سی کوشش، اور اس طرح کی کوشش کی گئی ہے کہ ان خواتین کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خواتین یہاں پر بچت گٹ کی جیسے سود کے معاملوں میں ملوث نہ ہو، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس کی شروعات یہاں پر جو لوگ قوم اور ملت کی خواتین کو بیدار کرتے ہیں، ایسی خواتین کو ہی انہوں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا، اور ان لوگوں کو سلائی مشین یہاں پر جس طرح سے تحفے میں دی، اور وہ لوگ جیسے عربی پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور دین کے علاوہ یہاں پر ان کے گھر کے لیے جس طرح سے روزی مہیا کرانا ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح سے سلائی کرنا ہے، اور سلائی کر کے اپنے پریوار کا ادر نرواہ کرنا ہے، اس طرح کا یہاں پر ماحول دیکھنے کو ملا ہے۔ اور بس اسی ادیش کو یہاں پر برقرار رکھتے ہوئے لوگوں نے، خواتین نے بچت گٹ سے دور رہنا چاہیے، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا۔ اور بس اسی کی ایک چھوٹی سی پہل آج پربھنی شہر میں عالمہ حضرات ہے، اور عالمہ حضرات یہاں پر گھر گھر جا کر جو علم دیتے ہیں، جو قرآن کی یہاں پر تعلیم دیتے ہیں، ایسے تمام عالمہ حضرات کو آج لگ بھگ 10 ضرورت مند عالمہ حضرات کو سلائی مشین دیے گئے ہیں۔ جمیعت الانوار چیریٹیبل ٹرسٹ گولیگاؤں اونڈا ہنگولی ضلع ہنگولی کی جانب سے مولانا علیم الدین قاسمی صاحب ان کی جانب سے، اور اس وقت مولانا مفتی کلیم بیگ صاحب ندوی، مولانا عیسیٰ خان صاحب قاسمی، مولانا علیم الدین صاحب، ساتھ میں جمیعت الانوار چیریٹیبل ٹرسٹ کے مولانا علیم الدین صاحب، ساتھ میں انہی کے ساتھ میں یہاں پر مفتی رشید صاحب یہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور جس طرح سے یہاں پر مفتی رضوان صاحب ان کی بھی موجودگی تھی، جو یہاں ضرورت مند خواتین کو، ضرورت مند عالمہ حضرات کو 10 سلائی مشین دیے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک ادنا سی کوشش تھی مولانا علیم الدین قاسمی صاحب ان کی جانب سے۔ آئیے جانتے ہیں اس وقت کس طرح کی اپنی پرتکریا دیتے ہوئے، کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار اس وقت تمام مانیوروں نے، مولانا صاحب نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، آپ کو ہم سنا رہے ہیں۔ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله.
دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں یہ دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہ دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں ماشاء اللہ بہت زبردست. قاری صاحب کی نعت کو سن کر حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نے 1000 روپے کا انعام دیا. مفتی کریم صاحب نے 100 روپے کا انعام دیا. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت مولانا مفتی مرزا کلیم بیگ ندوی صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ. کیونکہ وقت بہت کم ہے اور یہاں اتنی شخصیات بڑی اور اہم بیٹھی ہے کہ ان کو اگر 2 منٹ بھی لیا جائے تعارف کے لیے تو بھی بہت پکڑ ہوگی اور اگر میں ان کے لیے ہندو پوری پکڑ ہوگی. اس اعتبار سے میں صرف جو ہے صاحب اور یہ صاحب جو صدر بھی ہیں جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر بھی ہیں جمعیت علماء مراٹھواڑہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور کیا قاری صاحب آپ کے دوست ارحا جی یہ اور ہمارے ماشاءاللہ یہ جملہ رہ گیا تھا یہ ہمارے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جن کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں جمع ہوئے جو ہے اپنے جمعیت الانوار چیریٹیبل ٹرسٹ اس کے روح روا مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا دینی مزاج ہے دینی ماحول ہے اور خدمت کا ایک جذبہ ہے کہ ماشاءاللہ بیمار ہونے کے بعد آپریشن ہونے کے بعد پہلا سفر ہنگولی ہوا اور آج یہاں حاضری ہوئی. اللہ قبول فرمائے. ناظم جلسہ مفتی محمد رضوان صاحب انہوں نے پہلے بتا دیا کہ وقت کی نزاکت ہے اور واقعتاً میں جانتا ہوں کہ وقت کی نزاکت ہے. عصر مغرب کا وقت بالکل نازک ہے. ہمارے نام کریم منڈڑی حافظ محمد عیسیٰ صاحب یہ بھی یہاں موجود ہیں. عقیل بھائی ماشاءاللہ آج تک پربھنی نیوز کے مولانا عبدالقدوس صاحب جو ابھی آپ نے جو ہے ان سے تلاوت کلام سنا ہے اور ابھی جنہوں نے انعام حاصل کیا ہے اور ماشاءاللہ بہترین نعت پڑھی ہے. ہمارے دوست حافظ عرفان اللہ خان صاحب اور مفتی نعیم صاحب قاری ساجد صاحب مولانا عبداللہ صاحب ایڈوکیٹ تحمد فاروقی صاحب
माशाल्लाह जिन्होंने अभी असराना भी किया हमारे को, अल्लाह बेहद का कबूल फरमाए। इस सिर्फ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम मेरे अज़ीज़ दोस्त, जमइयत उलमा मराठवाड़ा के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी, इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद ईसा ख़ान साहब काशफी, खाजिन जमइयत उलमा मराठवाड़ा, और हमारे अज़ीज़ दोस्त और जमइयतुल अनवार चैरिटेबल ट्रस्ट औंढा के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब, इनामदार कासमी, मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब और तमाम ही अहबाब व हज़रात। मुख्तसर ये कि जमइयत उलमा रोज़े अव्वल से कौम और मिल्लत की खिदमात के काम करती चली आ रही है और उसकी खिदमात का दायरा 100-200 साल पर मुश्तमल है। जमइयत उलमा की कई दिनों से मकामी तौर पर ये काविशें रही कि आज समाज और मुआशरे में बचत गट को लेकर बड़ी बेचैनी और उलझने हैं और बचत गट के उन्वान से पूरा समाज और मुआशरा परेशानी का शिकार है और ऐसे दलदल में धंसता जा रहा है जिससे निकलना मुश्किल तरीन दिखाई देता है। जमइयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने ये कोशिश की कि हमारी घर की मस्तूरात को घर में बैठे हुए रोज़गार का एक निज़ाम बनाया जाए और उसी की शक्ल व सूरत में हमने उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान के घरों को निशाना बनाकर सबसे पहले उनकी खिदमत का यानी जज्बे के तौर पर हमारी एक मीटिंग अभी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले परभनी शहर में ही हुई और उसी से ये काम की सूरत और शक्ल हमारे सामने वजूद में आई। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब कासमी को कि हमने उनकी खिदमत में एक दरख्वास्त रखी कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, चूँकि मौलाना इस किस्म के कारहाय नुमाया पूरे समाज और माशरे में पूरे महाराष्ट्र भर में अंजाम दे रहे हैं। आप मस्जिदें तामीर करते हैं, मदरसों की इयानत व इमदाद करते हैं, बोर खुदाई का काम करते हैं, इसी तरीके से बेशतर काम आपका यानी ट्रस्ट के जानिब से पूरे महाराष्ट्र भर में जारी है। हमने एक दरख्वास्त की और अभी हम हिंगोली से आ रहे हैं जहाँ पर हमने वहाँ भी 10 मशीनों को तकसीम किया और एक अदना सी एक काविश थी जो मौलाना ने कबूल की। उन्होंने अपने मुआविनीन के कानों तक इस पैगाम को पहुँचाया, उन्होंने बसरो ख़म उसको तस्लीम किया और एक इयानत की, इमदाद की। हम हकीकत में जिस तरीके से ताउन करना चाहिए वो नहीं कर सके, लेकिन हमारी एक अदना सी काविश थी जो हमने आपकी खिदमत के तौर पर पेश करने की कोशिश की और हम उन तमाम मुआविनीन की को अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। बिलखुसूस मौलाना कल ही ऑपरेशन से बाहर आए और आज आपकी खिदमत के लिए आपके रूबरू हाजिर हुए। अल्लाह इनको भी बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। जमइयत उलमा की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बशमूल एडवोकेट तहमीद फारूकी साहब। बशमूल इसलिए एक ही नाम ले रहा हूँ कि वो नाम ज़रा नुमाया है, कानूनी एतबार से हमारे शाना बशाना रहकर वो कौम और मिल्लत की खिदमात के काम करते हैं। इसी तरीके से सैयद अकील भाई भी जो यानी आज परभनी आज तक के संपादक है, उसके ज़िम्मेदार है, उन्हें भी जब भी आवाज़ दी जाती है वो खंदा पेशानी के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा लगकर कौम और मिल्लत की खिदमात के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। मैं आप तमाम की आमद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अहबाब व हज़रात ने यानी अपनी गूनागू मसरूफियात को बालाए ताक रख कर आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको भी बेहतरीन जज़ा और बदला अता फ़रमाए। और मेरी माओं और बहनों से गुजारिश व दरख्वास्त ये है कि हमारे समाज और माशरे में बड़ी बेचैनी और बड़ी बेदीनी आम होती जा रही है और आइंदा के हमारे अज़ाइम है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक बड़ा प्रोग्राम
اسی ہال میں 150 مشینوں کو تقسیم کرنے کا آئندہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش و درخواست ہے کہ آپ اس کے آسانی کے لیے، اس کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جس طریقے سے آج آپ کی ایک چھوٹی سی یعنی ہم خدمت کر سکے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو اس کے خواستگار ہیں، جو اس کے امیدوار ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، ان تک بھی وہ خدمات ہم اپنی جانب سے پیش کر سکیں۔ اللہ ہم تمام کی باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کے کام کرنے والوں کی شروعات کی کوششیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور اچھائی کے راستے پر چلنے کے اعتبار سے، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو بچانے کے اعتبار سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے راستے کھولتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی پوری پلاننگ ہو گئی، تو ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ ہے کہ جو آسمان چھو رہی ہے اور تو اپنی چونچ میں ذرا سا پانی لا کر اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو چڑیا نے جواب دیا کہ یہ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے چونچ کے پانی سے اس آگ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو درخت پہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی تھی، تو نے میرے خلیل کو بچانے کی کیا کوشش کی؟ تو میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ عرض کروں گی کہ یا اللہ، جتنی استطاعت تو نے مجھے دی تھی اتنا کام میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، جتنا پانی میرے چونچ میں سما سکتا تھا میں نے اس پانی سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ آج جیسے ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ سود کا، بیاج کا اور کیا کہتے ہیں بچت گھٹ کے نام سے ایک ایسی وبا، ایک ایسا غلط نظام پورے سماج میں سرایت کر گیا ہے کہ جس کا مقابلہ طاقت سے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپشن اور بدل نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا علیم الدین صاحب قاسمی کو اور ان کے رفقا اور معاونین کو کہ انہوں نے جمعیت علماء ضلع پربھنی و مراٹھواڑہ کی اس گزارش پر لبیک بھی کہا اور اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے حلال روزی پیدا کرنے اور حلال روزی کو گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ایک سلائی مشین کا انتظام کیا ہے۔ اللہ مولانا کو صحت دے، عافیت دے اور ان کے رفقا کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو ہماری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس مشین کو لے جا کر آپ اپنے گھر کی، دیوان خانے کی زینت نہ بنائیں، اس پر کام کریں، روزی حاصل کریں اور اچھے سے اچھا کام اس پر آپ یعنی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام کی مقبولیت کو پورے علاقے میں عام فرمائے گا۔ ایک رجحان آپ کے گھر پہ پیدا ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کام لا کر دیں گے، سلیقے کا کام ہو، ایمانداری کا کام ہو، سچائی سے کام کرنے والے بنیں اور اس کا معاوضہ جو لے تو ایسا لے کہ آپ کا بھی محنتانہ اصول ہو اور سامنے والے کو بھی اطمینان ہو۔ کم نفع کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ شروع میں آپ کم نفع سے تجارت کریں گے یا کام کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پاس کام لا کر دیں گے۔ آج وقت کی بڑی قلت ہے، لوگ وقت پر کام کرنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جو کام وقت پر کیا جائے گا تو اس کی اہمیت بھی بڑھے گی اور اس کے پاس یعنی عوام کا رجحان بھی بڑھے گا۔ ایک چھوٹا سا یعنی ہے لطیفہ، لیکن بات اس لطیفہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے اپنی شادی کی شیروانی ایک ٹیلر صاحب کے پاس سلانے ڈالی کہ فلاں تاریخ کو میرے پاس شادی ہے اور آپ میری شیروانی سی کر دیجیے۔ تو ٹیلر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آنے لگی تو ویسے ویسے ان کا اصرار بھی بڑھنے لگا۔ ٹیلر صاحب ہے کہ اپنی روزانہ کے معمولات سے جو ہے کام کرتے رہے اور وہ شیروانی جیسی کی ویسی رہی۔
शादी की तारीख आ गई, टेलर साहब ने शेरवानी नहीं दी, शादी हो गई तो बाद में जिसकी शेरवानी थी उन्होंने जो है उनको मांगना बोलना छोड़ दिया। बाद में वो शेरवानी तो मालिक साहब के पास घर में बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि बच्चे के चिल्ले पर तो शेरवानी पहनूं, तो टेलर साहब के पास गए तो टेलर साहब ने कहा कि हाँ ठीक है दे दूँगा इंशाल्लाह। वो चिल्ले की तकरीब भी ख़त्म हो गई, अक़ीक़े का मौका आया, तब उन्होंने मुतालबा किया टेलर साहब मेरी शेरवानी। तो टेलर साहब ने बोला अभी क्या गड़बड़ है, सीलिंग है ना, मुझे कोई मसला नहीं है। अक़ीक़े से बाद में बच्चे की शादी का मौका आया तो टेलर साहब के पास गए, टेलर साहब शेरवानी हमारे अब्बू ने आपके पास दी थी, अब मेरी शादी है आप दे दीजिए ना। तो अब ये टेलर साहब का बच्चा दुकान पे बैठा हुआ, तो ये बच्चा जब मुतालबा करते करते दुकान पर ही बैठ गया कि मैं शेरवानी लेकर ही जाऊंगा, वैसा नहीं जाऊंगा, तो टेलर साहब के बच्चे ने 1-2 दिन कड़ी मेहनत करके वो शेरवानी उसको सी कर दी और बाप से कहा कि आइंदा इतने अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेना। तो देखिए काम जो वक्त पर होगा उसकी अहमियत होगी। अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए और इस हलाल ज़रिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये जितना आप काम करेंगे अपने आसपास में जिसको भी ज़रूरत है मशीन की उसको भी इस्तेमाल करने दें। जैसा हमारे कारी साहब ने, मौलाना ईसा साहब ने कहा कि ये तो छोटी सी हम कोशिश है, जैसे चिड़िया की चोंच का पानी है, अल्लाह देगा, आप दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर और भी रोज़ी रोटी के जो ज़राए हैं, हलाल तरीक़े के जो ज़राए हैं, इंशाअल्लाह उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए और जमीयत उलमा के तमाम अरकान को बेहतरीन सिला अता फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बरोज़ मंगल 16 जून को हिंगोली हाज़री हुई और हाज़री का मकसद ये था कि जमीयत अनवार की जानिब से आज हिंगोली में जो है सिलाई मशीन की तकसीम थी कि ज़रूरतमंद ख़वातीन को खुद कफ़ील और बरसरे रोज़गार बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम की शुरुआत गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी में इसको रखा गया। तो जमीयत उलमा ज़िला हिंगोली के ज़िम्मेदार में जैसे हाफ़िज़ सैयद उबैद साहब और हाफ़िज़ अफसर साहब, ये हजरात जो है वर्किंग कमेटी में पहुँचे, इन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये प्रोग्राम हम हिंगोली में रखेंगे और इंशाअल्लाह ये 2-3 दिन में उसकी तैयारी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशा अच्छी तैयारी भी रही और सिलाई की मशीन की तकसीम का प्रोग्राम भी काफ़ी बेहतरीन रहा। और इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा मराठवाड़ा से कारी अब्दुल रशीद साहब हमीदी, मौलाना ईसा खान काशफी और आहकर की हाज़री हुई और यहाँ पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मलंग शाह हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था। सारे हिंगोली शहर के और ज़िले के मौक़िर शख्सियात, सियासी अहबाब, अदबी हजरात और समाजी खिदमतगार और उलमाए किराम की बड़ी तादाद के साथ हमारी ज़रूरतमंद बहनों और बेटियों की भी अच्छी तादाद थी। अब चूँकि एक तकसीम की मशीनें जो थी वो मुतय्यन थी, 10 मशीनें तकसीम की गई, लेकिन ज़रूरतमंदों का इज़्दिहाम और उनकी लेने वालों की तादाद ज़्यादा थी। तो ज़िम्मेदारों से बात की गई, इंशाअल्लाह और कुछ दिनों के बाद दोबारा इस तरह का प्रोग्राम रखा जाएगा। इसी तरह सिलाई सेंटर का क़याम अमल में आएगा। इसी तरह जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों ने ये इस बात का भी इजहार किया कि मेहंदी के कोर्सेज़ वगैरह जितने मस्तूरात के काम घर बैठे किए जा सकते हैं उन तमाम कामकाज के करने का अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ इंतज़ाम शुरू किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है। हम जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी सही, आपकी कोशिश से ये अमल हुआ है। इसी तरह मौलाना अलीम साहब के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपने इस कामकाज और अपने ज़िम्मेदारों को जो है हिंगोली में इस तरह के कामकाज करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अल्लाह तबारक ताला तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस तरह रिफ़ाए आम के कामकाज करने की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमइयत उलमा ज़िला हिंगोली की दावत पर और इसी तरीके से जमइयतुल अनवार चैरिटेबल ट्रस्ट की दावत पर जमइयत उलमा मराठवाड़े का वक्त हिंगोली शहर में आया और यहाँ पर देखने के बाद में ये पता चला
कि माशाअल्लाह ज़रूरतमंद मकानों के अंदर, घरों के अंदर रोज़गार के सामान को बहम पहुंचाने के लिए सिलाई मशीनों को तकसीम किया गया। हम मुस्तकिल तौर पर यह ऐलान करते रहे और बारहा इस बात की तरगीब समाज और माशरे में देते रहे कि बचत गट से बचना हम तमाम की जिम्मेदारी है, इसलिए कि बचत गट सूद का यानी ऐसा जाल है जिससे निकलना बिल्कुल नामुमकिनात जैसा दिखाई देता है। समाज और माशरे को उसने खोखला कर दिया है और हम उसके मुतबादिल के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन कोई सबील सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज अल्लाह जज़ाए खैर दे, जमइयतुल अनवार चैरिटेबल ट्रस्ट औंढा के जिम्मेदार हजरत मौलाना अलीमुद्दीन साहब कासमी को कि आपने अपनी मुआवनत से अपने जिम्मेदार अहबाब व अफराद को तरगीब दी और जमइयत उलमा ज़िला परभनी के ज़ेर एहतमाम ऐसे मोहताज और ज़रूरत मकानों के अंदर सिलाई 10 मशीनों को तकसीम किया गया। ये इस काम का आगाज़ है, इब्तिदा है। आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमइयत उलमा के अज़ाइम बहुत ऊंचे हैं और जमइयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से अभी जो है स्कॉलरशिप का निज़ाम जारी है और अभी आपके लिए स्कॉलरशिप ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए भी औकात दस्तयाब है। आज 16 तारीख है, 20 तारीख तक 5वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के वो तलबा और तालिबात जो होशियार है और जिन्होंने अपने दर्जात में 75% नमराज से जायद से कामयाबी हासिल की और वो आगे की तालीमात के लिए उनके लिए यानी माश और उनके लिए यानी जो चीज़ें माने बनती है जमइयत उलमा उसके लिए स्कॉलरशिप जारी करती है। लिहाजा मेरी गुजारिश व दरख्वास्त है, जिस तरीके से सिलाई मशीनों का ये सिलसिला जारी रहा, अपनी औलाद को तालीम से रोशनास कराने के लिए, अपनी औलाद के तालीम और तरक्की के लिए जमइयत उलमा ने एक मजबूत पहल और कदम उठाया है और हर साल जमइयत उलमा की जानिब से ये काम जारी है। अभी मरहला 5वीं से लेकर 12वीं तक के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप जारी करने का है। ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर जमइयत उलमा की उसके फॉर्म मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदार यानी जमइयत उलमा की जो ज़िला हिंगोली की टीम है, आप उससे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमइयतुल अनवार अत-तालीमी अल-खैरिया अल-हिंद एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हिंगोली महाराष्ट्र इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम अकाबिरीन उलमाए कराम जमइयतुल मराठवाड़ा मौजूद हैं, बंदा भी उसमें खादिम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब की मेहनतों से अल्लाह ये काम को करवा रहा है। अल्लाह इन हज़रात को जज़ाए खैर दे, इनकी हिम्मतों ने बंदे को आगे बढ़ाया और ये काम अल्लाह अपने फजल से पूरा फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों का तकसीम होना, बेवाओं में यतीमों में सिलाई मशीन का तकसीम होना, बोरवेल का होना, गरीबों के मकानात का होना और स्कूलों का चलना और कहीं स्कूल की कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ का होना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे जमइयत उलमा और अकाबिरीन के मशवरे से होता है और हमारे अपने ट्रस्ट के तहत काम होता है। आप हज़रात से खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तवज्जो की दरख्वास्त है कि जहाँ तक भी ये मैसेज पहुँचे, जैसा कि हमारे हज़रत क़ारी साहब ने फरमाया, बचत गट के ज़रिए से जो मस्तूरात इसमें मुलव्विस हैं ये उससे बचने की कोशिश करें और जो लोग अपने रिज़्क़ हलाल के ज़रिए से इसमें अपना पैसा सर्फ कर रहे हैं उन तक भी अल्लाह इसका फैज़ पहुँचे और उम्मत को भी इससे जो फैज़ याब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मैं हूं सैयद अखील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज, उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।